Hello everyone. So today we are going to solve the next questions. Right? We have solved till answer number 12 and the example 12 and 13 we have seen. Today answer number 13. Right? Answer number 13 we have to find on which of the following intervals is the function f of x is equal to x to the power 100 plus sin x minus 1. This function is given. We have to find on which interval it is strictly decreasing. On which of the following intervals it is strictly decreasing. First is given 0 to 1, right? So for 0 to 1, f dash of x is 100 x power 99 plus cos x. ठीक है? Now listen. For strictly decreasing, it should be less than 0 or negative. But this quantity is positive. This is also positive. So here it is not. For this particular function, it is not strictly decreasing, right? Because see, what is there? X power 99 will be always positive, right? Into 100 is there, and cos x also will be positive in 0 to 1, right? हम कोई भी वैल्यू लेंगे 0 to 1 से x की तो पॉजिटिव ही रहेगा. क्लियर? सो दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. सेकंड, पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 से लेके पाई मतलब पाई बाई 2 and pi. This in between this means second interval, second quadrant. In second quadrant cos x is negative. चलो माना cos x नेगेटिव है, लेकिन कितना नेगेटिव जाएगा? cos की रेंज क्या है? माइनस, मतलब वो -1 से तो कम हो ही नहीं सकता. ठीक है, cos x. तो हियर cos x जो है ठीक है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स पावर 99 प्लस cos x. तो ये जो वैल्यू आएगी इसमें से -1 अगर करेंगे, -1 तो भी ये पॉजिटिव ही रहने वाला है. ठीक है, सेम थिंग यू कैन टेल. सो इट इज ऑल्सो नॉट, क्या नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ठीक है. थर्ड 0 टू पाई बाई 2. तो 0 टू पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो थर्ड में 0 टू पाई बाई 2 दिया है. ठीक है, 0 टू पाई बाई 2 मीन्स इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में तो सभी साइन है, कॉस है, सभी पॉजिटिव ही होंगे. देयरफॉर थर्ड आल्सो इट इज नॉट. तो बाकी कौन सा बचा? नन ऑफ दिस. फॉर दिस अवर आंसर इज नन ऑफ दिस. ठीक है. नाउ आंसर नंबर 14. Answer number 14 is there. Find the least value such that f of x is equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on x belongs to 1 to 2. मतलब हमें ऐसा प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है, this function is strictly increasing on interval means whenever x is belonging to 1 to 2. तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे f dash of x 2x plus a. ठीक है. अब 2x plus a जो है, तो हमें क्या करना है? लिस्ट वैल्यू ढूंढनी है. ठीक है, तो एक काम करेंगे, फॉर f of x टू बी, हाँ, तो एक्चुअली पावर कट वॉज देयर. हाँ, तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग दैट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1
is strictly increasing on 1 to 2, right? X belongs to 1 to 2. So let us do one thing. We have found out f dash of x. ठीक है, तो f dash of x must be greater than 0. तो if it is greater than 0, then 2x plus a is greater than 0. Why I have kept greater than 0? Because for strictly increasing it is always greater than 0. Means a is greater than minus 2x. ठीक है, now listen. Value of x belongs to 1 to 2. तो अब एक काम करते हैं कि when x equal to 1, ठीक है, when x equal to 1, then what will happen? a greater than minus 2 into 1. minus 2 into 1 क्या होगा? minus 2 into 1 minus 2. When x equal to 2, a is greater than minus 2 into 2 तो minus 4. तो इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है? माइनस 2 और माइनस 4. ठीक है, तो अगर माइनस 2 से भी बड़ा है और माइनस 4 से भी बड़ा है तो समझ लो कि ये नंबर लाइन है. माइनस 2 से बड़ा है माइनस 4, मतलब माइनस 2 से ग्रेटर है, माइनस 4 से भी ग्रेटर है. तो भाई ये इसको अगर नहीं लिखेंगे माइनस 2 से ग्रेटर है तो a इज ग्रेटर देन माइनस 2. ठीक है, दैट इज अवर लीस्ट वैल्यू. ठीक है, a is greater than minus 2, that is our least value, right? So this was your answer number 14. Now let us move with answer number 15. In answer number 15 it is given that let I be an interval. हाँ, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मतलब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब लेवल का क्वेश्चन है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा एप्लीकेशन करना पड़ेगा हमें. चलो, तो लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम माइनस 1 to 1. ठीक है, माइनस 1 to 1, आई इज इक्वल टू इज गिवन, दैट इज minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. ठीक है, prove that the function f of x is equal to x plus 1 by x is strictly increasing for x belongs to minus infinity minus 1 यूनियन. हाँ, हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स. तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए? एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0. 1 माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मीन्स वॉट? एक्स स्क्वायर में यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0. ठीक है, नाउ व्हाट टू डू? इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, डेट इज रॉन्ग. चलो, तो टू फाइंड दिस एक काम करते हैं. देखो, एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही रहेगा. एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो आप, तो एक्स तो ऑलवेज एक्स स्क्वायर, अगर एक्स जो भी वैल्यू है माइनस में है कोई भी है तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस ही रहने वाला है. इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है तो ही ये पूरा ग्रेटर देन 0 होगा. तो इट डबल इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, एक्स स्क्वायर इंटू 0 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम. इनइक्वालिटी है तो एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे नहीं ले सकते हम, इज इक्वल टू है तो ले सकते हैं, बट हियर ग्रेटर देन दिस देयर, सो वी कैन नॉट टेक. सो हियर व्हाट आई हैव डन, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो आई हैव हियर ग्रेटर देन 0, सो आई हैव नॉट टेकन दिस फॉर राइट नाउ. तो ये फंक्शन को ग्रेटर देन 0 होने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तो ही ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा. तो नाउ माइनस 1 विल गो दैट साइड, सो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1. तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 मतलब एक्स शुड बी प्लस और माइनस 1.
ठीक है, x शुड बी प्लस और माइनस 1. So we have got the critical points, right? So now listen. Minus infinity plus infinity, minus 1 plus 1. तो अगर f डैश की बात करें, इस ये जो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर जो है, माइनस वैल्यू कोई भी रखेंगे, माइनस 1 माइनस 2 ले ली फॉर एग्जाम्पल माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1/4, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. तो हियर इट इज, ठीक है. अब -1 to 1 मान लो कि हमने ले ली पॉइंट दैट इज हियर वी हैव टेकन -1 to 1. तो फॉर एग्जाम्पल वी टेक एनी वैल्यू, वी से दैट वी हैव टेकन 0.5, ठीक है, 0.5 सपोज वी हैव टेकन. So you put the value, we will get negative. In this you put the value, you will get negative. अब 1 to infinity, 1 से लेकर फॉर एग्जाम्पल 2 लिया हमने, तो 1/2 का स्क्वायर 4, तो सेम ऐसा ही केस आएगा बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो हियर ऑल्सो इट इज पॉजिटिव. ठीक है, तो हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, मतलब ग्रेटर देन 0. कौन से दो इंटरवल पे आएगा, तो माइनस इंफिनिटी टू -1 और उसका यूनियन करेंगे किसके साथ, 1 to infinity. ये पॉइंट पे ये फंक्शन जो है दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तो नेगेटिव है, तो ये वो इंटरवल नहीं ले सकते, ये इंटरवल और ये इंटरवल. ठीक है, चलो. तो दिस वॉज योर आंसर नंबर 15. नाउ लेट अस मूव टू आंसर नंबर 16. We have to prove that f of x is equal to log sin x. ठीक है, f of x is equal to log sin x is strictly increasing. We have to prove that that particular function, this function is strictly increasing on 0 to π/2. अब देखो भाई 0 to π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई भी फंक्शन है पॉजिटिव रहेगा, बट स्टिल लेट अस फाइंड आउट f of x is given, so f dash of x log sin x derivative 1/sin x, sin x derivative that is cos x, so that is nothing but cot x. ठीक है, f dash of x is what, cot x. ठीक है, अब 0 to π/2 है. ठीक है, 0 to π/2, तो देखो भाई 0 to π/2 में cot x ऑलवेज पॉजिटिव. तो when f for f dash of x is greater than 0, then x is belonging to 0 to π/2 union π to dπ/2. ठीक है, which double implies that strictly increasing. And when f dash of x is less than 0, x belongs to π/2 till π union dπ/2 till 2π. So here it is strictly decreasing. क्यों डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बिकॉज π/2 से पाई में और 3π/2 से 2π में ये फंक्शन जो है लेस देन 0 है, इसीलिए. सी नाउ आई हैव एक्सप्लेन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. तो मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो है मैं आपको सिर्फ मेथड दिखा रहा हूँ, आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो रहे हो. ठीक है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लगे कोई पॉइंट पे तो मुझे पूछना, हाँ, बिकॉज right now we have solved so many questions in this exercise, so I hope that you understood now when it is strictly increasing, strictly decreasing क्या करना होता है, तो वो सब आपको पता है अब, इसीलिए. राइट, चलो, तो ऐसा ही है आंसर नंबर 17. सो वन क्वेश्चन टुडे यू विल ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन. आंसर नंबर 17.
तो now we will solve answer number 18. F of x is given, that is x cube minus 3x square plus 3x minus 100. So we have to show that it is increasing on all real numbers, means increasing on all real number मतलब x belongs to R. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड f dash of x. तो f of x is given, so if you find f dash of x 3x square minus 6x plus 3, ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, राइट. तो इसे हम एक काम करते हैं, दैट इज आई विल टेक आउट 3 कॉमन फ्रॉम दिस. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो 3 कॉमन, तो इट इज नथिंग बट x माइनस 1 होल स्क्वायर. अब मेरी बात को सुनो ध्यान से. यहाँ पे f डैश ऑफ x जो है दैट इज 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर. अब 3 जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. हमें क्या प्रूव करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा बिकॉज इट इज स्क्वायर. भले x माइनस 1 स्क्वायर है, ठीक है, बट ये पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है. बट ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है व्हेन इट इज इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 1, ठीक है. तो इसलिए हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं दिया यहाँ पे. हियर इट इज नॉट गिवन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हियर इट इज गिवन ओनली इट इज इंक्रीजिंग ओनली, बिकॉज इन इंक्रीजिंग it is f dash of x must be greater than or equal to 0. तो यहाँ पे equal to 0 कब होगा, when it will be equal to 0 when x equal to 1, right. So 1 minus 1 is 1 minus 1 0, 0 square is 0 and 0 into 3 is 0, so is equal to. अगर यहाँ पे सिर्फ x square होता तो is equal to नहीं आता, तो then it is always greater than 0. But x minus 1 है, तो if we will keep x equal to 1, then this particular function f dash of x will be equal to 0. Therefore, here it is f dash of x is greater than or equal to 0. तो ये इससे मतलब क्या प्रूव होता है, therefore it is increasing, right. Now we have proved. After this you write therefore the function is increasing. बहुत easy question था, right. Answer number 18. चलो, तो now let us proceed with answer number 19. Answer number 19 we have, that is find the interval in y equal to x square e power minus x is increasing. हमें ये फाइंड करना है कि ये जो इंटरवल है, मतलब हमें फाइंड करना है इंटरवल जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, राइट. तो we will do one thing, we need to find the values, okay, we need to find the values of x for which f dash of x is greater than or equal to 0. Means let us find f dash of x. It is equal to f of x. So f dash of x is equal to x square, नहीं पहले काम differentiate x square, तो 2x e power minus x as it is minus y actually sign is coming plus, but e power minus x derivative is minus of e power minus x, so plus minus will become minus, x square as it is, ठीक है. Actually here it is plus, but here it will come minus, so I have directly kept here minus. Now what can be done, we have to find the intervals. So let f dash of x why greater than equal to 0 came, because it is increasing given only, right, not strictly increasing, only increasing is given. तो
2x e power minus x minus x square into e power minus s greater than equal to 0, but not greater than, let it be equal to 0. ठीक है, let it be equal to 0. Now y equal to 0 because whenever we have to find the intervals we are doing like this way, right? So here what will be happening, if I will take out common x into e power minus x common, right? So 2 minus x equal to 0. तो यहाँ पे कौन से इंटरवल मिलेंगे, एक तो 2 पे 0 हो जाएगा और एक 0 पे 0 होगा. ठीक है, तो एक तो ये 0 पे 0 होगा और एक तो 2 पे 0 होगा, राइट? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. अब मेरी बात को समझो ध्यान से, ठीक है? अब अगर जीरो मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके 0, इफ माइनस इंफिनिटी टिल 0 इट इज देयर, सो व्हाट विल हैपन दैट if we keep here minus 1, for example we keep minus 1, 2 minus of minus 1, so it is positive, right? Positive. Here it will be negative, this will be positive, so here the answer is negative, right? Here you see 0 to 2, between 0 to 2 you take 1, for example 2 minus 1 1, so this is positive. ठीक है, ये पॉजिटिव मिलेगा, ये 1 तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये ठीक है ये भी पॉजिटिव रहेगा. So here it is positive. 2 from 2 to infinity. For example, you take 3, right? If you are taking 3, so if you take 3, what will happen? 2 minus 3 minus 1. So this is negative. Here it is positive. Negative, positive. This will be positive only. So negative into positive. The answer is negative. तो हमें क्या प्रूव करना है? इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब कौन से पॉइंट पे हो रहा है? ये एक ही, मतलब पॉजिटिव जो है 0 to 2. बट देखो आपकी एनसीईआरटी में, हमारी एनसीईआरटी में जो इंटरवल दिए है वो मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि वो सही है. एक्चुअली इसका आंसर आएगा f dash of x greater than equal to 0 in x belongs to क्लोज्ड इंटरवल आएंगे, राइट? सॉरी 0 to 2, 0 to 2. Now if you have any confusion regarding this whatever we have covered today, you can ask me, right? So now we will be covering the next all the parts in my next video, right? So till then everyone have a good day and thank you very much.